So again, good afternoon, everyone. Let us start today's class. Right. So last time we have seen how to plot irrational numbers on number line, isn't it? 9M 1.3, that is locating numbers on number line. उसके बाद सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक बाकी है चैप्टर खत्म होने के लिए, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. So first we will see this locating numbers on number line, that is 9M 1.3. I have given you 9M 1.3 homework exercise and in class exercise from home, isn't it? Even in class exercise तो पूरा मैंने करा दिया था. नहीं कराया था, सॉरी, दो क्लास का कंफ्यूजन हो गया. ओके, इन क्लास एक्सरसाइज का शायद लेवल 1 मैंने करा दिया था. लेवल 2 के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करना है. ओके ओके, कितने स्टूडेंट्स के लिए मेरा वॉइस क्रैक कर रहा है? Just raise your hand. If my voice is cracking, just raise your hand. I will clear all of your doubts. Wait. Okay. So my voice is cracking for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And I think 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, majority of the students. Wait, so let us wait for 1-2 minutes because it is because of internet error. Okay. So Navya is telling that I am audible. Thank you. Vikas is telling sometimes. Ahad is having some doubts. Okay, Ahad, I will clear your doubts. Don't worry. Chandan is telling successive magnification. What is this successive magnification, Chandan? Now, Vastav is asking that, sir, what is waiting room? Okay, I will clear that also. Now, let me use another approach for that. Okay. So can you hear me now? Am I audible? क्या अभी मेरा voice crack हो रहा है? Okay, thank you, students. Okay. So from now on, you have to be specific in your answer, right? सिर्फ y n नहीं चलेगा, थोड़ा स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा कि yes it is clear or it is breaking, something like that. इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा. Okay, so let us begin our exercise, students. Okay, तो कहाँ से आएगा? Let's see. Okay, so okay, successive magnification on example 13. Okay, that you are asking. Example 13 कौन सा example 13, चंदन? और exercise 1.3. Exercise 1.3 में
Can you write question number, Chandan? Okay. Question number 6. I got it. So let us clear all of your doubts from 9M 1.3. So type your question number in class exercise 9M 1.3. In class exercise के कौन से questions में doubt है? जैसे चंदन has asked question number 6. Okay. चलो जानवी आपने question 9 लिखा. I think वो homework का होगा. Okay. Prahlad is asking question 6 and 7 both. Okay. Let me make this board more clear for you. So it is question 6 and 7. उसके बाद हेली ने भी पूछा क्वेश्चन 7, आदित्य पी क्वेश्चन 7 and 8. ओके, वास्तव क्वेश्चन 8, चंदन 8, 9, 10 वो होमवर्क के होंगे शायद चंदन 8, 9, 10, क्योंकि इन क्लास एक्सरसाइज में तो बी स्पेसिफिक व्हाट यू आर राइटिंग. फर्स्ट राइट इन क्लास एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. सिर्फ इन क्लास एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? So I'm getting a 6, 7 and 8. Okay. So let us see in class exercise 6, 7 and 8. 6, 7 and 8. Okay. Let us see each and every question. Question 6, question 7, question 8. Okay. So the first in question number 6, students, they are asking you that visualize 2.65 on the number line using successive magnification. Okay. Your question is we have to visualize 2.65, or I can say I can be specific 2.65 on number line using successive magnification. Okay, so let us see how we can do that. Okay, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मींस हमें बस स्टेप बाय स्टेप जाना है स्टूडेंट्स. ओके, स्टेप बाय स्टेप हम बस उसे मैग्नीफाई करते जाएंगे. इट इज दैट इजी. ओके, आपको बस पता नहीं था कि इसे हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोलते थे. ओके, क्या स्टिल मेरी वॉइस क्रैक कर रही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं. एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बीच में क्रैक हो तो बताना. ओके, सो सबसे पहले अगर मैं नंबर लाइन को लिखूं स्टूडेंट्स, तो आई नो यहाँ पे 0 आएगा, -1, -2 एंड सो ऑन, 1 सो ऑन. 6 किन दो के बीच में होगा? 2 and 3, isn't it? तो अगर मैं 2 और 3 को मैग्नीफाई कर रहा हूँ, समझना, अगर मैं 2 और 3 को मैग्नीफाई कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैग्नीफाइंग क्लास रख रहा हूँ, तो 2 और 3 के बीच के सारे नंबर्स को कैसे लिख सकता हूँ? सबसे पहले if it is 2, if it is 3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 and 3.0.
isn't it? Now we have to find 2.65. अब 2.65 किस किस के बीच में होगा? 2.6 एंड 2.7. तो 2.6 और 2.7 को मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नीफाई, isn't it? मतलब 2.6 और 2.7 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वापस यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास रखूंगा. सो दिस विल बी माय 2.6 एंड दिस विल बी माय 2.7. और बीच के सारे नंबर्स में कैसे लिख सकता हूँ? दिस विल बी 2.61, 2.62, 2.63, or let me write like this. Wait, I have to make 9 or 10 equal parts. For that, I should be having 9 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it will be my 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, and this is 2.70. So this will be my 2.65. So this is the process of successive magnification. Okay, this is the process of successive magnification. Okay, so here are some messages. Abhiram is telling, sir, voice is cracking. Okay, lot of network problem. Okay, wait. Voice is cracking, board is not clear. Okay. Okay, same here, me too, not cracking. Your board is not clear. Yes. Okay, now students, please be specific in your answer. Okay, आप क्या लिख रहे हो? मी टू का मतलब क्या है? मी टू से मैं क्या समझूं? आपको क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो जस्ट बी स्पेसिफिक. If board is clear, type board is clear. If no, it is not clear. If voice is cracking, type voice is cracking. If no, it is not cracking. Okay, like that to answer. Now Aditya, okay, so Krishna को board clear नहीं है. Okay, now here यहाँ पे प्रहलाद बोल रहे हैं sir it is not cracking. आदित्य पी बोल रहे हैं can we first write 2.653 and so on and draw single number line. नहीं आदित्य, पहले हम डायरेक्टली 2.65 नहीं बता सकते. सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब आपको इस तरीके से दिखाना ही पड़ेगा. सक्सेसिव मतलब ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके ही जाना पड़ेगा. पर पहले स्टेप में डायरेक्ट दिखा दोगे तो फिर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा. ओके, चलो नेक्स्ट. तो कृष्णा को बोर्ड क्लियर नहीं है, शशांक को बोर्ड क्लियर नहीं है, विकास को क्लियर नहीं है, भावेश को क्लियर नहीं है, संचित को क्लियर नहीं है. ओके, हाँ बिकॉज नेटवर्क इश्यू चल रहे हैं. शशांक बोल रहे हैं वीडियो इज आल्सो फ्रीजिंग. ओके, बोर्ड इज नॉट क्लियर. जानवी, साकिब, ऑब्वियसली. सुकीर्ति, सर आई एम गेटिंग डिस्कनेक्टेड एंड अगेन ऑटोमेटिकली. यस सुकीर्ति, अगेन एंड अगेन वापस कनेक्ट होते जाओ. नाउ Tejasri, sir, board is not clear. Okay. Yashila, sir, the visual of your board is not clear for me. Okay. तो बोर्ड का विजुअल सबके लिए क्लियर नहीं है बिकॉज नेटवर्क का इश्यू आ रहा है. सो व्हाट वी कैन डू, ओके, वी कैन ट्राई 2-3 alternatives. वेट, लेट मी स्विच टू मोबाइल इंटरनेट एंड देखते हैं क्या वो उससे क्लियर हो रहा है कि नहीं. अगर उससे क्लियर हो रहा है तो इट इज गुड. नहीं क्लियर से हाफ स्टूडेंट्स को क्लियर दिख रहा है, हाफ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं दिख रहा है. तो लेट अस सी. प्रहलाद पूछ रहे हैं सर मींस वी मस्ट एस्टिमेट द वैल्यू बिटवीन टू नंबर्स. यस, आपको बोलना पड़ेगा कि 2.65 कौन से दो नंबर के बीच में है. ओके, अभी चलो. वॉइस वेरी लो. शशांक ने बोला वॉइस वेरी लो. जानवी ने बोला वो तो सुन ही नहीं पा रही है. ओके, लेट अस सी. yes या नो मत लिखो, पूरा. तो रेड बोल रहे हैं सर योर वॉइस इज वेरी लो. नव्या बोल रही है ऑडिबल है.
आदित्य पी ने बोला सर हम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन 2.65 ग्रेटर देन 3। सबसे पहले तो सिंबल कर लेते आदित्य, वो लेस देन होगा, 2 इज लेस देन 2.65 इज लेस देन 3, इसी तरीके से। एंड देन ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, हाँ उस तरीके से लिख के आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ओके। बट आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, ओके। Mansa is telling that sir your voice is very low. Sakib is telling that screen is very much blurry. Okay, wait for 2 minutes. अगर क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो वी हमें कोई अलग अल्टरनेटिव ऑप्शन सोचना पड़ेगा। ओके, भावेश इज टेलिंग दैट नाउ इट इज बेटर। यशस बोल रहे हैं वॉइस इज क्रैकिंग अ लॉट। लेट अस सी। तेजश्री बोल रही है स्क्रीन क्लियर नहीं है। ओके, अभी आप बोल रही हैं आई एम क्लियरली ऑडिबल। तो स्टूडेंट्स जो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, आप आपके वॉल्यूम बटन को इंक्रीज कर दो, आइदर मोबाइल और लैपटॉप। प्लीज आपका वॉल्यूम बटन इंक्रीज कर दो। अफशा इज टेलिंग दैट बोर्ड इज क्लियर नाउ। प्रहलाद बोल रहे हैं इट इज बेटर। जानवी बोल रही है इट इज नॉट क्लियर। मानसा को क्लियर हो गया, नाउ इट इज ओके। माही को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है वेट। शशांक के लिए बेटर हो गया। we'll wait for 1 more minute and then we will use another approach. ओके, द मेन थिंग इज अगर आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो वो मेन चाहिए। अगर मुझे सुन पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो वी आर हैविंग अनदर अप्रोच फॉर दैट, राइट। बोर्ड अगर क्लियर नहीं है तो नो इश्यू। मेन इश्यू है कि आप मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं। इफ आई एम कंप्लीटली ऑडिबल देन दैट्स फाइन, हम उससे क्लास आराम से ले सकते हैं। फिर रहा बोर्ड का क्वेश्चन, तो बोर्ड का क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। Okay, so wait is over. Now tell me who cannot hear me. कौन मुझे अच्छे से सुन नहीं पाए? जस्ट आई रिक्वायर फीडबैक फॉर वॉइस। वॉइस अच्छे से आनी चाहिए, दैट्स इट। स्क्रीन क्लियर नहीं है तो उसका हम देख लेंगे, जस्ट मुझे वॉइस का फीडबैक चाहिए। यस नो ऐसा कुछ भी मत लिखना चैट में। आई रिक्वायर कंप्लीट, इट्स क्लियर और नॉट क्लियर। सो ओके, माही को रुक रुक के आ रही है, रेड को क्रैक होके आ रही है, ओके वेट। संचित को क्लियर नहीं आ रही है, ओके 3 स्टूडेंट्स। जानवी को क्लियर नहीं आ रही है, 4 स्टूडेंट्स, ओके। कृष्णा को रुक रुक के जा रही है, ओके। जयति को भी क्लियर नहीं जा रही है, ओके। शशांक को भी नहीं, मनोज को भी नहीं, अक्षता को भी नहीं, ओके। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ऑल योर फीडबैक। तो आप में से 5 to 6 स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं आ रही है वॉइस, बाकी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है, ओके। सो लेट अस प्रोसीड, ओके। वी आर टोटल 60 में से 5-6 को क्लियर नहीं आ रही है। उन 5-6 स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा प्लीज गो फॉर रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास। अभी जितना सुनाई दे रहा है उतना सुनो, ओके। सो सारी क्लास आज वॉइस पे ही होगी ना। व्हाट अबाउट बोर्ड? तो बोर्ड आपको ब्लर दिख रहा है, राइट। तो बोर्ड के लिए मैं क्या करूंगा, सारी चीजें पूरी मैक्सिमाइज करके लिखूंगा, बड़े बड़े लेटर्स में लिखूंगा। फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा ब्लर ही दिखेगा, बट वॉट आई एम गोइंग टू डू इज, वो जब आपको ब्लर दिख रहा है, राइट, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन के फोटो ले लूंगा और उसका पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, ओके।
सो आपको क्या करना है, आपको आज मेरी वॉइस सुननी है और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आपको बस थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए कि मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ, राइट। वो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए और फिर घर जाके जस्ट आपको पीडीएफ अच्छे से देख लेनी है। ओके, सो ये मेथड हम फॉलो करेंगे। नाउ सी स्टूडेंट्स, तो पर्टिकुलर ये वाले क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया था कि विजुअलाइज 2.65 ऑन नंबर लाइन विथ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें देखना है। तो वी ऑल नो दैट 2.65 और 2 और 3 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल नंबर लाइन ड्रॉ की जहाँ पे है -2, -1। ओके, जो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हर एक जगह पे उंगली रख के बोल रहा हूँ। सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट इट इज टू इट इज -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, इजंट इट। नाउ आपका 2.65 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 को मैं एग्जैगरेट कर रहा हूँ। 2 और 3 के बीच के सारे नंबर्स में ऐसे लिख सकता हूँ, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 अप टू 2.9 एंड 3, इजंट इट। क्या अब मुझे 2.65 मिला? नहीं। 2.65 मुझे कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स? 2.6 और 2.7 के बीच में। तो 2.6 और 2.7 को भी मैं एक्सटेंड करूंगा, तो वो हो जाएगा 2.6, 2.61, 2.62, 2.63 अप टू 2.69 एंड 2.7। अब यहाँ पे जो आपका 2.65 आया, वो 2.65 को आपको लोकेट करना है। लोकेट करना है तो उसको लोकेट कर दिया। सो दिस इज विजुअलाइजेशन ऑफ 2.65 using successive magnification. Okay? No. Radhika is asking that, sir, do we have to draw the number line with exact value? Exact value कभी नहीं मिलेगी राधिका। तो जस्ट इसको हर बार आप एक्सटेंड कर दीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसके 10 टुकड़े करेंगे तो वो 0.5 के होंगे ईच। या इधर 10 सेंटीमीटर का एग्जैगरेट कर रहे हैं तो हर एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का होगा। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ओके, डाउट्स इन दिस? क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया? इफ इट इज क्लियर, टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। Having any doubt, type doubt in chat box. Don't type why or okay. If it's clear, type clear in chat box. If you are having any doubt, type that out in chat box. ओके, सो वो सबको क्लियर है। विकास ने पूछा, सर इफ इट वुड बी 2.65, अगर वो 2.659 हो विकास, ओके सी व्हाट इज विकास क्वेश्चन स्टूडेंट। विकास ये पूछ रहे हैं अगर सर वो 2.659 होगा तो हम क्या करेंगे। अगर वो 2.659 होगा, सो ऑब्वियसली 2.659 आपका 2.65 और 2.66 के बीच में होगा। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। अगर 2.659 को प्लॉट करना है तो 2.659 का 2.65 और 2.66 के बीच में होगा। तो मैं 2.65 और 2.66, ये है मेरा 2.65, ये मेरा 2.66, इसको मैं एग्जैगरेट करूंगा। तो जब ये एग्जैगरेट होगा, ओके, सेम इसके 10 पार्टीशन होंगे। ओके, अब इसके 10 पार्टीशन क्या होंगे? दिस इज 2.65, फिर 2.651, 2.652, 2.653, 2.654, इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 2.659 और ये आपका आएगा 2.67 और 2.66। तो ये आपका हो जाएगा नंबर। सो इज इट क्लियर विकास? विकास का क्वेश्चन था सर 2.659 है तो कैसे होगा, तो वो इस तरीके से होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। उसके बाद, सर माय मिस्टेक 2.659 बार।
हाँ तो वो बार वाला क्वेश्चन उसके नीचे दिखा रहा हूँ, बार वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ओके नाउ प्रहलाद आस्किंग सर इफ दे आस्क टू मैग्नीफाई अ बार, हाँ बार वाला मैं दिखा रहा हूँ, बार वाला इसके नीचे देखेंगे। सर कैन यू टेल अगेन आई वाज एग्जिटेड, हाँ समर डोंट वरी, मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ। ओके सर इफ ओके ये हो गया, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। और कृष्णा ने भी वही पूछा सर 4.782 बार, हाँ तो बार वाला क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा, बार वाला बाकी है। ओके बार वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बार वाला क्वेश्चन 7 जब हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो समर्थ समर्थ पूछ रहे हैं सर क्या एक बार वापस आप रिपीट करेंगे, वो एग्जिट हो गए थे। ठीक है समर्थ आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, ऑलरेडी ये 2-3 बार हो ही गया है बट सी ओके। चलो समझना यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके तो समर्थ यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये दिया गया था कि 2.65 को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाए, और 2.65 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। ओके अब ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना है 2.65 कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली 2.65 आपका 2 और 3 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हमने 2 और 3 को एक्सटेंड कर दिया, उसके बीच के सारे नंबर्स लिखे 2.1 टू 2.9, तो हमें मिला 2.6 एंड 2.7। हमें पता है 2.65 2.6 और 2.7 के बीच में मिलेगा, तो उसको वापस एक्सटेंड किया तो वो आपका हो गया 2.6 2.61 ऐसा करके 2.65 यहाँ पे मिला। सो दिस इज योर आंसर। ओके सो एवरीवन क्लियर विद दिस, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। now see students, in question number 7 what they are asking is visualize 9.37 bar on number line 9 places। all know that 9.37 बार मतलब वहां पे आपका 3737 रिपीट होता जाएगा, इजंट इट। अब वो आपको 4 डेसिमल तक लिखना है, तो 9.37 बार 4 डेसिमल तक क्या हो जाएगा 9.3737, इजंट इट 9.3737। अब इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। नाउ सी हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। 9.3737 कहाँ पे आएगा 9 और 10 के बीच में। ओके इजंट इट। तो सबसे पहले आप 9 और 10 ड्रॉ कर सकते हैं या पूरी लाइन ड्रॉ करके, जैसा हम अभी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके गए। सो सपोज दिस इज 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। उस तरीके से वो नेगेटिव में सो ऑन। अब 9.37 आपको मिलेगा 9 और 10 के बीच में। सो लेट अस एक्स 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच में आपको नंबर मिलेंगे 9 एंड ये 10, बीच के सारे नंबर्स में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो हाँ ये सेम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9। ओके अब आपको पूछा गया है 9.3737, तो ऑब्वियसली 9.3737 कहाँ पे होगा 9.3 और 9.4 के बीच में। सो लेट अस यूज 9.3 एंड 9.4। सो 9.3 को एक्सपांड किया, इधर 9.4 को खींचा, तो 9.3 एंड 9.4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट एज 9.3 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36
9.37, 9.38, 9.39 and 9.4, isn't it? अब आपको जो दिया गया है वो क्या पूछा है? 9.3737। तो 9.3737 ऑब्वियसली आपका 9.37 और 9.38 के बीच में होगा। सो आई विल एक्सपांड और आई विल एक्सैगरेट 9.37 एंड 9.38। तो अगर 9.37 और 9.38 को एक्सैगरेट कर रहा हूँ तो वो आपका हो जाएगा now 9.37, 9.371, 9.372, 9.373, 9.374, 9.375, 9.376, 9.377, 9.378, 9.379 and 9.38. Okay. अब now they have asked about 9.3737. So this is 9.373. After this 9.373 there should be 7. So obviously वो आपका 9.3 इसको एक्सैगरेट करते हैं या मैग्नीफाई करते हैं. So my left hand limit is 9.373, right? तो उसको और आगे बढ़ेंगे. It will be 9.3731, 9.3732, 9.3733, 9.3734, 9.3735, 9.3736, 9.3737, 9.3738, 9.3739 और फाइनली आपको मिलेगा 9.374. तो यहाँ पे आपको चाहिए 9.3737, तो यहाँ पे मिलेगा. एवरीवन क्लियर विद दिस? 9.3737. नाउ एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. एक बार रिपीट करके फिर आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्लियर हुआ कि नहीं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ. आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था स्टूडेंट्स कि 9.37 बार को हमें लिखना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. ओके. तो हमने 9.37 बार होल बार को लिखा 9.3737. सबसे पहले वो 9 और 10 के बीच में आएगा, फिर 9 और